Bismillahirrahmanirrahim. I am Rabia Hayat, student of MPhil Microbiology from Kohat University of Science and Technology. Today's my presentation topic is determination of antibacterial activity of Nicotiana tabacum against bacteria isolated from teeth gums of smoker and non-smoker. Content list: Introduction, aims and objectives, methodology, results, conclusion, recommendations, and references. First of all, introduction. Nicotiana tabacum is a medicinal plant. It is cultivated tobacco that is grown in herbaceous plant. It is commonly grown of all plants in the genus Nicotiana. It is a commercial crop. Nicotiana tabacum. It produces nicotine. Nicotine is a stimulated drug that speeds up the message traveling between the brain and body. Forms of tobacco. There are two forms of tobacco, that is dried tobacco and smokeless tobacco. Dried tobacco is a kind of curing process that takes between 3 and 8 weeks to properly prepare the tobacco for use. This method of curing will produce tobacco leaves that are relative to other curing methods, that is low in sugar, high in nicotine and sweet in flavor. ड्राई टोबैको में टोबैको की जो लीव्स होती हैं उनको ड्राइड किया जाता है और फिर उसको यूज करने के काबिल बनाया जाता है. ये लो इन शुगर होता है, हाई इन निकोटीन होता है एंड स्वीट इन फ्लेवर होता है. ड्राई टोबैको मेडिकली भी यूज किया जाता है. टोबैको लीव्स यूज फॉर मेडिकली फॉर सेंचुरीज. Mexican physician used fresh leaves of tobacco to help relieve headache. In Colombia, fresh leaves of tobacco is used in poultices which are placed extremely over boils and wounds. In Africa, dried leaves of tobacco are used to help with sores. Another type of tobacco is smokeless tobacco. Smokeless tobacco is a tobacco product which is used by means other than smoking. The use involves chewing, sniffing, or placing the product between gums and cheeks or lips. Smokeless tobacco में हमारे पास वो products आते हैं जो कि एज अ पेस्ट या पाउडर यूज किए जाते हैं और उनको हम यूज करते हैं एज अ पेस्ट. Smokeless tobacco products are produced in various forms such as chewing tobacco, snuff, snus, and dissolvable tobacco product. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है नस्वार, जिसको हम स्मोकलेस टोबैको भी कह सकते हैं. मेडिसिनल यूजेस ऑफ टोबैको. टोबैको को हम डिफरेंटली मेडिसिनल यूजेस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्यूटेनियस डिजीजेस like skin diseases including skin, hair, nails, muscles, and glands. Buerger disease cured by nicotine, inflammatory bowel disease IBD that is also cured by tobacco leaves. इसमें जो tobacco leaves है उसके कैटाप्लाज्म को एज अ ऑइंटमेंट यूज करते हैं क्यूटेनियस डिजीजेस के लिए. सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है टूथपेस्ट. Tobacco probably mixed with lime or chalk appears to have been used in these Native American population as a toothpaste to whiten the teeth. American native population में tobacco leaves के paste को as a toothpaste use किया जाता है to whiten their teeth. Third one is insect bites or rattlesnake bite. अगर कोई insect या rattlesnake bite करे तो अगर हम उसी जख्म पे टोबैको लीव्स के पेस्ट को लगा के बैंडेज के साथ बांध दें तो जितना भी जहर होता है उसको वो एक्सक्रीट आउट करके उस बाइट को, उस बाउंड को हील करता है. इसके अलावा टोबैको लीव्स और भी मेडिकली यूजेस में यूज किया जाता है, जैसे कि स्किन रैशेस हो गया. टोबैको लीव्स should be an ideal plant for homeopathic practices used in emergency. It is also used
In asthma, TB, smoke leaves clear out nasal passage, etc. Diseases caused by tobacco. टोबैको से डिफरेंट डिजीजेस कॉज्ड होती है, जैसे कि कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, लेकिन सिवियरली इसमें लंग डिजीज आते हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो गया। COPD इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक लंग डिजीज होती है जिसमें हार्ड टू ब्रीथ होता है। इसके अलावा हार्ट डिजीजेस हो गए, pneumonia, diabetes, TB, and certain eye diseases, that is asthma and problem of immune system. Oral microflora. Oral microflora is the aggregate of microorganisms residing in the mouth, and more than 700 bacterial species have been detected that can be found intraorally. ऑरल माइक्रोफ्लोरा में हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एक माउथ में प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 700 बैक्टीरिया स्पीशीज इसमें डिटेक्ट किए गए हैं, दैट इज फाउंड इन इंट्राओरली रीजन। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज भी आते हैं एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आते हैं। ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस, टोमेटोकोकस, एक्टिनोमाइसीट्स एटसेट्रा, एंड ग्राम नेगेटिव में मोरक्सेला, नेसेसेरिया, कैम्पेलोबैक्टर, हेमोफिलस एटसेट्रा। ये बैक्टीरिया ओरल माइक्रोफ्लोरा में आते हैं। उसके बाद है फंगस ओरल माइक्रोफ्लोरा। फंगस ओरल माइक्रोफ्लोरा जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें वो ओरल माइक्रोफ्लोरा वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फंजाई प्रेजेंट होता है। कैंडिडा जो है is a type of yeast present in humans in small amount in large proportion. इसके अलावा एस्परजेलस हो गया, पेनिसिलियम, क्रेप्टोकोकस, these all are fungus oral microflora. Aims and objectives. मेरी इस प्रेजेंटेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले मेरा जो एम है वो ये है कि टू एवेल्युएट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी of Nicotiana tobacco against bacteria isolated from teeth gums of smokers and non-smokers. कि मैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी निकोशियाना टोबैको की एवेल्युएट करूं अगेंस्ट उस बैक्टीरिया के जो कि मैंने टीथ गम्स ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स से लिया है। और ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ये है कि पहले तो हम उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करें, फिर उसको आइडेंटिफाई करें फ्रॉम टीथ गम्स ऑफ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। Determination of antibacterial activity of Nicotiana tobacco against bacteria isolated from teeth gums. जब हम उस बैक्टीरिया को स्मोकर एंड नॉन स्मोकर टीथ गम से आइसोलेट करें और उसको आइडेंटिफाई करें, तो उसके बाद हम उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो निकोशियाना टोबैको की है उसको डिटरमाइन करें उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो कि हमने आइसोलेट किए हैं फ्रॉम टीथ गम्स। इसके लिए हमारे पास मेथडोलॉजी है। सबसे पहले हम सैंपल कलेक्शन करेंगे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर्स। उसके बाद हम सैंपल को प्रोसेस करेंगे फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग, बायोकेमिकल टेस्टिंग एंड एगर-वेल डिफ्यूजन एसे। This is the gram staining process in which we use different applications. Biochemical test, we use catalase test, coagulase test, citrate, oxidase, urease test, triple sugar ion and indole test. These are the tests: catalase, coagulase, citrate, oxidase, urease, triple sugar iron and indole test. इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल पता चलेगा। फिर हमने एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम प्लांट कलेक्ट करेंगे, उसको शेड ड्राई करेंगे। शेड ड्राई करने के बाद हमने उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद हम उसको वाटर में सोक करेंगे। उसके बाद रोटेटरी एवापोरेशन उसकी करेंगे पेस्ट बना के। फिर एगर-वेल डिफ्यूजन एसे, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीडिया प्रिपेयर करना है, बैक्टीरियल लॉन प्रिपरेशन, देन एगर-वेल फॉर्मेशन। इसमें हम लोग वेल्स फॉर्मेशन करेंगे और उन वेल्स के अंदर जो हमने एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया था उसकी एप्लीकेशन करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंसंट्रेशंस। उसके बाद हमने उस प्लेट को, उस मीडिया को इंक्यूबेट करना है फॉर 16 आवर्स एंड जोन मेजरमेंट इन
these are the results जिसमें हमारे पास पॉजिटिव कंट्रोल आया 60% एंड नेगेटिव 40%. Prevalence of positive sample is of non-smoker is 35% and smoker is 25%. ये वो बैक्टीरियाज हैं जिसको हमने आइसोलेट किया है फ्रॉम डिफरेंट स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर टीथ गम्स. इसकी हमने ग्राम स्टेनिंग की, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट किए. बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम स्मोकर सैंपल्स, ये वो बैक्टीरिया है जो कि हमने स्मोकर सैंपल से आइसोलेट किए. इसको हमने पाई चार्ट में बनाया है. प्रेवलेंस ऑफ बैक्टीरिया, इन सब को हमने आइसोलेट किया और इतने परसेंटेज ये प्रेजेंट थे. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ च्यूइंग टोबैको. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ ड्राई टोबैको. ड्राई टोबैको की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इन बैक्टीरियस के अगेंस्ट क्या थी? हमने डिफरेंट जोन्स ऑफ डायमीटर से हमने डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट किए जिसमें हमने पास डिफरेंट बैक्टीरियाज हमारे पास आइसोलेट किए. उसमें हमने ड्राई टोबैको एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जिसमें हमारे पास पॉजिटिव कंट्रोल ज़्यादा था और नेगेटिव कम था. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ च्यूइंग टोबैको, इसमें हमने आइसोलेट किए डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड इसके हमने एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखी. कंक्लूजन हमारे पास क्या आया? स्मोकर सैंपल से हमने डिफरेंट बैक्टीरियाज आइसोलेट किए फ्रॉम डिफरेंट परसेंटेजेस एंड नॉन स्मोकर से ये बैक्टीरिया आइसोलेट किए. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ निकोशियाना. Dried tobacco extract showed maximum activity against S. hicus and M. mucilaginus. इसमें जो हमारे पास ड्राइड टोबैको एक्सट्रैक्ट था उसने ज़्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी शोड की अगेंस्ट दीज टू बैक्टीरियासिस which we isolate from smoker and non-smoker, and minimum activity showed against E. coli. Chewing tobacco extract, इसने maximum activity against show की as coni, while rest of the isolates were found resistant. Recommendations: different concentrations of Nicotiana tobacco extract can be used to determine antibacterial activity. कि different concentration of Nicotiana tobacco extract को हम लोग use कर सकते हैं determination of antibacterial activity, collect samples from other sites, broad spectrum antibiotics as positive control and solvents as negative control, that is acetone and ethanol. Taste of death. Thank you for listening to my presentation.